Good morning, my dear children. Welcome back to your online classes. So today we are going to continue our grammar chapter, that is parts of speech. In our previous video, we have seen about the types, that is parts of speech: noun, adjective, verb, pronoun. Yes, we all have seen this: verb, adverb, conjunction, interjection. These all names, parts of speech names, we have seen in our previous video. And in our previous video, we have also learned about noun, pronoun and adjective. Yes. Now, in this, we are going to start with our next part of speech, that is verb. Yes. What is verb? You all know what is verb? So, let us see first definition of verb. Verb tells us what person, animal or things do. Yes, हमने आप पहले ही पढ़ा है कि वर्ब मतलब कोई एक्शन वर्ड. हम कौन सी एक्शन कर रहे हैं या हम कौन सा काम कर रहे हैं. Yes, which thing the person, animal or things do, what they are, वो क्या है, किस प्रकार के हैं, और what they have, या वो कौन सी चीज possess करते हैं, उनके पास क्या है. Yes, so verb basically होता है एक्शन वर्ड. मतलब हम कैसी कौन सी एक्शन कर रहे हैं. जैसे कि what I am doing now, I am explaining. Yes, तो explaining हो गया हमारा एक्शन वर्ड. अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे तो I am writing. Yes, तो writing हो गया हमारा एक्शन वर्ड, वर्ब. Yes, तो जो एक्शन हमें बताई गई हो, yes, what the person, animal or thing is doing or what action is performing, what is having, is known as the verb. Yes, sentence जनरली बनता है दो चीजों से. एक तो सब्जेक्ट प्लस verb. Yes, subject मतलब we have already studied the subject and predicate. Yes, subject is a word that talks about noun. Yes, subject मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं वो होता है subject. और verb मतलब कि वो कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है. Yes, तो हमेशा सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब्स ये दोनों कंपल्सरी एक सेंटेंस में होते ही हैं. Yes, वर्ब जैसे कि कार में, क्या आपकी कार इंजन के बिना चल सकती है? नो. वैसे ही हमारा सेंटेंस वर्ब्स के बिना नहीं चल सकता है. यस, अ सेंटेंस कैन नॉट बी फॉर्म विदाउट अ वर्ब. हर एक सेंटेंस में दैट इज द वर्ब. यस, वर्ब इज यूज्ड इन एवरी सेंटेंस. अंडरस्टूड? Subject plus verb is compulsory in every sentence. Now we will see some examples of verbs so it is more clear to you all. Yes. Ram is dancing. Riya is sleeping. Yes, Ram is dancing. Riya is sleeping. The elephant has large ears. Yes, Ram is sleeping. जैसे कि I have previous said you subject और verb के बिना sentence नहीं बनता है. तो what is subject? We have already studied in your previous chapter. What is subject? किसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ? राम के बारे में. Yes, तो राम is subject. अभी राम कौन सा काम कर रहा है? राम के बारे में कौन सी एक्शन बताइए हमको? Yes, Ram is dancing. So dancing becomes our verb. Understood? Dancing becomes our verb. Riya is sleeping. Again, यहाँ पे subject कौन सा है? Riya. Yes. What is Riya doing? Riya क्या कर रही है? Riya
verb. The elephant has large ears. Yes, यहाँ पे that is different. Yes, ये सब तो हमको words verb पता है easily कि actions है dancing, sleeping. But यहाँ पे कौन सी action है? Is there any action given here? Yes, any action given? The elephant has large ears. No, there is no action. What मतलब verb तो है ही, पर dancing, sleeping, eating, walking, not like that. यहाँ पे verb है has. Yes, यहाँ पे verb है has. क्योंकि definition में हमने क्या पढ़ा था? A verb tells us about person, animal, things do, what they are or what they have. Yes, what they have, उनके पास क्या है. अगर वो डिस्क्राइब करते हैं तो ये भी वर्ब है. Yes, ये has. Let me write here. Has, have, was, were. ये सब क्या है हमारे helping verbs. Yes, ये सब हमारे कौन से verbs होते हैं? Helping words. This you will learn further when you will study about full chapter of verbs. Yes, यहाँ सिर्फ हमें इतना समझना है कि verb is something that tells what person, animal, place is doing or what they are or what they have. Yes, तो यहाँ पे elephant has है हमारा वर्ब. has, have, was, were. Yes, ये सब होते हैं हमारे helping verb. is और am भी होता है हमारा verb. Clear? These were the few examples of verb I have given you. Now we will see some few other examples of verb also, so it becomes more clear to you all. Yes. So here are the few another examples of verb in which we will find what is and which is verb. Yes. First, the students of our class are very intelligent. Yes. Students, which is first subject कौन सा है यहाँ पे? Students. Yes. और students कैसे हैं? Yes. What they are. What they are. कौन से students है? Verb क्या आएगा यहाँ पे? I have already given you that helping words here. Yes. Which will come verb here? The students of our class are very intelligent. तो verb कौन सा आएगा? Are. Yes. Intelligent. हमने intelligent कौन सा है ये? कौन सा parts of speech है? Yes. Intelligent is adjective. वो हमने हमारे previous वीडियो में पढ़ा था कि adjective that adds to the meaning of verb. Adjective मतलब किसी की खूबी बताता हो, किसी की खासियत बताता हो हमें, वो होता है adjective. Intelligent यहाँ पे क्या है? Adjective है. Yes. The Indian team beat the Australian team. Beat मतलब वो मारने वाला नहीं, bat मतलब हरा दिया. इंडिया की टीम ने ऑस्ट्रेलिया की टीम को हरा दिया. तो यहाँ पे कौन सी एक्शन हो रही है? हराने की. दैट इज बैट. तो बैट होता है verb. Rajiv is working hard in maths. Yes, Rajiv is working hard. यहाँ पे राजीव क्या है हमारा? राजीव is subject. Yes, in our previous chapter we have always studied about subject predicate. Rajiv is working hard. तो मैंने पहले ही बताया था आपको helping words कौन से होते हैं? is, am, are, have. Yes, तो is यहाँ पे working मतलब ये action है, तो is भी helping verb है, इसलिए is working पूरा verb. और hard क्या है? क्या खासियत बता रहा है वर्ब की? कि वो बहुत मेहनत कर रहा है. तो हार्ड क्या होता है हमारा? एडजेक्टिव. यस, ये हम फिलहाल वर्ब्स की बात कर रहे हैं. सो आई एम नॉट अंडरलाइनिंग एनीथिंग एल्स, बट यू हैव टू रिमेंबर एंड यू हैव टू see all the sentences. What is adjective, what is verb, what is noun, what is pronoun. Yes, so this will revise every part of speech for you. Yes, and it will become easy for you to
understand. So this was about our verb. Yes. Now the next part of speech we will talk about, that is adverb. Yes, the word adverb. आपने verb तो पढ़ लिया, अभी adverb क्या होता है? word से पता चल रहा है हमें कि verb में कुछ add होता होगा. Yes, something is to be added to the verb. That means adverb. नाम में ही लिखा है add. मतलब adverb tells us more about the verb. वर्ब के बारे में हमें ज्यादा बताता है. Yes, another adverb or an adjective. Yes, adjective के बारे में या तो वर्ब के बारे में हमें कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती हो, वो होता है adverb. जैसे कि let me give you an example. जैसे कि मैं बोलूं I like ice cream. Yes, सिंपल सेंटेंस मैंने बोला कि मुझे आइसक्रीम पसंद है. I like आइसक्रीम. Yes, तो I है हमारा सब्जेक्ट. जैसे कि मैंने बोला कि सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस कभी नहीं बनता है. Yes, there is no sentence without subject or verb. Yes, so I like ice cream. I क्या हुआ हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट, जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हमारा I, और वर्ब मतलब लाइक. कौन सी एक्शन है यहाँ पे? लाइक. यस, I like आइसक्रीम. ये हो गया हमारा एक सिंपल सेंटेंस. यहाँ पे एडवर्ब हमें नहीं है, तो अगर मैं ऐसे बोलूं कि I like, wait a minute, I really like ice cream. Yes, कुछ मतलब चेंज हुआ. फर्स्ट में मैंने बोला सिर्फ I like आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम पसंद है. I really like आइसक्रीम, मुझे सच्ची में आइसक्रीम पसंद है. यस, कुछ चेंज लगा. जो चेंज आपको लग रहा है यहाँ पे रियली वर्ड्स के, हाँ मुझे सच्ची में पसंद है आइसक्रीम, तो ये रियली जो हम ऐड करते हैं वर्ब के साथ, जो हम यहाँ पे वर्ड ऐड कर रहे हैं रियली, वो होता है हमारा adverb. Understood? Because adverb is a word that adds meaning to the verb. Now let me give you another example. Second, the tortoise walked. इतना मैंने सेंटेंस बोल दिया सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ. यस, सब्जेक्ट के साथ और वर्ब के साथ कि टॉर्टोइस वॉक्ड, टॉर्टोइस चल रहा था. अभी अगर मैं नेक्स्ट सेंटेंस लिखूं यहाँ पे, द टॉर्टोइस वॉक्ड. वॉक्ड क्या है हमारा? वर्ब. यस, टॉर्टोइस वॉक्ड. Tortoise walked slowly. Yes. First sentence I have written just the tortoise walked. That's over. Second sentence I have added the tortoise walked slowly. Yes. तो verb के साथ मैंने क्या ऐड किया? tortoise कैसे चल रहा है? Slowly. तो slowly होता है हमारा adverb. Understood? Slowly becomes our adverb. Now next I will tell you. Is it visible from here? Yes. Soumya sang. Soumya sang. ये मैंने बोला सब्जेक्ट और वर्ब. जैसे कि मैंने बोला सब्जेक्ट और वर्ब के बिना सेंटेंस नहीं बनता है, तो इसलिए मैंने सेंटेंस बनाया सब्जेक्ट का और वर्ब का. खत्म. अभी नेक्स्ट सेंटेंस हमें ऐसे बोलना हो कि सौम्या sang beautiful
subject, verb, and that is our adverb. Clear? So this was about our adverb that adds to the meaning of verb or describes more about the verb. Yes? Now we will see the next part of speech, that is preposition. Yes? So first we will say definition of preposition. Preposition shows a relation between a noun, a pronoun, or some other words. Yes, you all know what is noun and you also know what is pronoun. So when the word shows relation between noun and pronoun, that becomes preposition. कि noun और pronoun के बीच में क्या relation है, अगर वो पता लगाने के लिए हमें preposition को use करना पड़ता है. Example, Samira sat on the chair. Yes, यहाँ पे noun क्या है? दो noun है, एक तो समीरा और दूसरा chair. समीरा is the name of person और chair भी है name of thing. तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? सेट है हमारा वर्ब, नाउन एंड नाउन. यस, तो ये है हमारा नाउन और ये है हमारा वर्ब और ये है हमारा नाउन. तो समीरा, सेट और चेयर, समीरा और चेयर के बीच में रिलेशन क्या है? यस, कि वो बैठ रही है. कहाँ बैठ रही है? चेयर पे. ऑन द चेयर. तो ऑन होता है हमारा प्रेपोजिशन. यस, जब भी हमें दो चीजों के बारे में रिलेशन पता चलता हो वो होता है हमारा प्रेपोजिशन. जैसे कि वर्ड्स होते हैं फॉर, अंडर, इन, इनटू, ऑन, अबाउट. ये सब वर्ड्स मोस्टली यूज होते हैं प्रेपोजिशन. यस, these types of words generally are used in preposition. Next example I will give you. The dog fell into the river. Yes, the dog fell into the river. ये है हमारा subject, ये है हमारा noun. This is also a noun और fell हमारा है verb. तो इन सब के बीच में रिलेशन क्या है? डॉग और रिवर के बीच में रिलेशन क्या है? क्या हुआ डॉग और रिवर का? तो इनटू, डॉग गिर गया, रिवर. अगर ये वर्ड हम नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा? सिर्फ ऐसे बनेगा. द डॉग फेल द रिवर. सिर्फ सेंटेंस हमारा ऐसे बनेगा कि डॉग गिर गया रिवर. पर कहाँ गिर गया? यस, द डॉग फेल इनटू द रिवर. रिवर के अंदर गिर गया. यस, तो इनटू होता है हमारा preposition. Understood? Next what I am giving you. They are planting saplings. अगर सिर्फ मैं ये लिखती हूँ they are planting saplings or garden. Yes, just I am writing this sentence. वो प्लांट कर रहे हैं sapling गार्डन में. पर गार्डन में वो कहाँ पार्क कर रहे हैं? गार्डन के अंदर, गार्डन के बाहर, कहाँ पार्क कर रहे हैं, प्लांट कर रहे हैं, या हमें पता चल रहा है कुछ? नो. So to know the relation between the planting and garden, yes, relation between the planting, saplings and garden, we add word to it to understand it. Saplings in. अभी हमने यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया इन, कि दे आर प्लांटिंग सैपलिंग्स इन द गार्डन. यहाँ पे इन से हमें क्या पता चल रहा है कि इन मतलब वो गार्डन के अंदर सैपलिंग प्लांट कर रहे हैं. यस, गार्डन के अंदर सैपलिंग्स प्लांट कर रहे हैं. तो हमारा इन होता है हमारा preposition. तो on, in, into, under,
Conjunction helps in joining words, group of words और sentences. Conjunction हमें words को या तो बहुत सारे words एक साथ हो या बहुत सारे sentence एक साथ हो, उनको साथ करने में, उनको join करने में हमारी help करते हैं. Yes, so conjunction helps in joining words, group of words and sentences. Let me give you example. Suppose मैं लिखूं जीतू, मोना are classmates. Yes, ऐसे लिखा मैंने. जीतू मोना आर क्लासमेट, तो जीतू हो गया अलग वर्ड और मोना आर क्लासमेट लिखा वो अलग लग रहा है ना आपको. यस, तो अगर यहाँ पे मैं एक सिर्फ वर्ड ऐड कर दूं एंड, यस, यहाँ मैंने वर्ड क्या ऐड कर दिया, एंड, तो जीतू एंड मोना आर क्लासमेट्स. क्लियर? अभी समझ में आया कि एंड वर्ड जो हमें ज्वाइन कर रहा है दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स और सेंटेंस को, वो होता है हमारा कंजंक्शन. यस, वो क्या होता है हमारा, दैट इज अवर कंजंक्शन. जीतू एंड मोना आर क्लासमेट्स. यस, नाउ नेक्स्ट, रिया यू मस्ट स्टे बैक. तो रिया तेरे को रुकना चाहिए. सेंटेंस आपको ऐसा लग रहा है ना. यस, तो अभी मैं इसमें एक वर्ड सिर्फ ऐड करूंगी और सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा. लेट अस सी. और, यस, रिया और यू मस्ट स्टे बैक. या तो रिया या तो तू, दोनों में से एक को यहाँ रुकना चाहिए, ऐसे बोलते हैं. यस, तो जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया और, तो ये दोनों सेंटेंस ज्वाइन हो गए एंड दैट बिकम्स अवर कंजंक्शन. नाउ नेक्स्ट, आई एम लेट, आई was sleeping. Yes, I am late, I was sleeping. ये दोनों आपको अलग सेंटेंस लग रहे हैं ना. अभी I am late, मैं लेट था, मैं लेट हो गया हूँ. I was sleeping, मैं सो रहा था. ये सेंटेंस यहाँ पे अलग अलग है. पर अगर मैं यहाँ पे एक वर्ड सिर्फ ज्वाइन करूँ तो सेंटेंस हो जाएगा पूरा एक साथ. यस, I am late, because I am late because I was sleeping. मैं लेट था क्योंकि मैं सो रहा था. यस, पहले ये दो अलग अलग सेंटेंस थे, पर जैसे ही मैंने यहाँ पे कंजंक्शन ऐड किया, कंजंक्शन मैंने लगाया, तो दोनों सेंटेंस क्या हो गए, एक साथ हो गए. यस, डेफिनेशन क्या है कंजंक्शन की, वो हेल्प करता है ज्वाइन करने में. कंजंक्शन हमें क्या करता है, हेल्प करता है दो सेंटेंस को ज्वाइन करने में, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को ज्वाइन करने में. यस, कंजंक्शन हेल्प्स इन जॉइनिंग वर्ड्स. यहाँ पे मैंने दो सेंटेंस भी मैंने ज्वाइन कर लिए. कैसे ज्वाइन किए मैंने, सिर्फ एक वर्ड ऐड करके. यस, you can all see by just adding one word we have joined the two sentences. Yes, so conjunction में mostly words add होते हैं और, and, because, so, although. Yes, ये सब words mostly add होते हैं, इसमें add होते हैं conjunction में. Yes, now 2-3 words
conjunction, but till now you will study only this part of conjunction, that is conjunction helps in joining the words, group of words or sentences. Yes. Now the last part of speech, that is interjection. Yes, what is interjection? Interjection express a sudden feeling. जब आप कोई फीलिंग एक्सप्रेस करते हो, वो सैड वाली हो, हैप्पी वाली हो या चाहे एंग्री वाली हो, जब आप कोई फीलिंग या इमोशन एक्सप्रेस करते हो, वो होता है इंटरजेक्शन. यस, अलग अलग फीलिंग्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेस करते हैं. जैसे हमारी टीम विन होती तो हम क्या बोलते हैं? हुर्रे. यस, जब भी हमें मदद चाहिए तो क्या बोलते हैं? प्लीज. व्हेन वी नीड एनी हेल्प वी से please. Yes, when we fall down you cry and say, oh, I fell down. Yes, so for different emotions you use different words to express your emotions. Now let us see examples of interjection, and this topic you will find very easy like previous ones. Yes, the first example of interjection is very simple, as I told you. Hooray, we won the match. Yes. Oh, the dog fell into the river. Oh, the dog fell into the river. Hooray! यहाँ पे कौन सी है? हैप्पीनेस वाले एक्सप्रेशंस है. We won the match. Yes, ये होता है हमारा इंटरजेक्शन. इनकी कौन सी एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग? अचानक से कोई फीलिंग हम एक्सप्रेस करते हैं, वाओ, हुर्रे, प्लीज. यस, तो वो होता है हमारा इंटरजेक्शन. और इंटरजेक्शन में ऑलवेज यू हैव टू पुट एक्सक्लेमेशन मार्क. यस, इंटरजेक्शन में हमेशा आपको क्या लगानी है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगानी है. यस, वी वॉन द मैच. यहाँ पे वॉन क्या है हमारा? हमने पढ़ा था वर्ब. यस, सेंटेंस. सेकंड सेंटेंस, ओ the dog fell into the river. अचानक से जब आप देखते हो कोई कि डॉग गिर गया है तो कैसे बोलते हो? ओ, the dog fell into the river. तो ओ यहाँ पे हमारा इंटरजेक्शन है और डॉग क्या है हमारा? नाउन. into क्या है? हमने पढ़ा था ना, into is our preposition और river भी है हमारा noun. Understood? Oh, the dog fell into the river. So in interjection you have to remember always that we have to put exclamation mark. Understood? So this was about your parts of speech that we have learnt, and now I will give you just one example in which we will cover our all parts of speech. Yes? Now this one sentence I have written you here. यहाँ मैंने एक sentence लिखा है जिसमें हमारी सब पार्ट ऑफ स्पीच कवर होती है. यस, इस एक सेंटेंस में सब पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी आ जाती है. नाउ यू विल से हाउ इट कैन कम इन दिस मच सेंटेंस. सो नाउ वी विल सॉल्व इट एंड देन यू विल अंडरस्टैंड इट. यस, फर्स्ट द टाइनी एंट. यहाँ पे नाउन्स हमको ढूंढने हैं. नाउन्स कौन से हैं? वी विल फाइंड दैट नेम ऑफ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. तो एट है हमारा नाउन. दूसरा नाउन we will see that is pit. pit भी हमारा नाउन. tiny. tiny मतलब क्या? किसी की खासियत बता रहा ना हमें कि टाइनी है, मोटा है, छोटा है, किसी की खासियत हो तो क्या बोलते हैं उसको? यस, इट इज नोन एज एडजेक्टिव. तो यहाँ पे लिखूंगी मैं एडजेक्टिव. किसी की खासियत के बारे में बताना है हमें तो दैट बिकम्स अवर एडजेक्टिव. अभी एक्शन क्या कर रहा है? कौन सा काम कर रहा है? एंड गिर गया वो, तो वो एक्शन गिर गया तो क्या बोलते हैं? एक्शन वर्ब को वर्ब. एक्शन
गिर गया. It cried frantically, help help. वो रोने लगा, help help. तो ये दो सेंटेंस अलग है, तो ज्वाइन कौन कर रहा है? कंजंक्शन, दैट इज एंड. यस, कंजंक्शन क्या है हमारा? एंड. और यहाँ पे दूसरी भी एक्शन कर रहा है एट. एक तो गिर गया वो कम, और दूसरा क्या कर रहा है? वो रो रहा है. तो फ्राइड हमारा क्या होता है? अगेन दिस इज ऑल्सो अवर वर्ब. अंडरस्टूड? और एंड, एंड के लिए यहाँ पे दूसरा क्या यूज किया है? एंड की जगह पे, एंड की जगह हम क्या यूज किया है? दूसरा इट यूज किया है कि टाइनी एंड फेल इनटू द पिट. वो पिट में गिर गया, एंड पिट में गिर गया. और वो इट मतलब वो, दैट इज एंड के बारे में बोला है. तो क्या होता है हमारा ये? प्रोनाउन. यस, इट बिकम्स अवर प्रोनाउन. नाउ फ्रैटिकली, क्राइड फ्रैटिकली. कैसे रो रहा है? यस, क्राइड फ्रैटिकली. जैसे खासियत बदला, यहाँ पे बड़ा छोटा, यस, बड़ा छोटा लंबा. यहाँ पे कैसे रो रहा है? जोर जोर से रो रहा है. तो फ्रैटिकली हमारा होता है अगेन एडजेक्टिव. यस, और फीलिंग, यहाँ पे कैसे क्या चिल्ला रहा है? और हेल्प 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 चिल्ला रहा है. तो हेल्प हमारा क्या हुआ? कंजंक्शन नहीं, हेल्प हमारा हुआ इंटरजेक्शन. Yes, help becomes our interjection. अंतर को क्या लगता है हमेशा? Exclamation mark. Yes, तो ये हमारा होता है interjection. Understood? यहाँ हमने parts of speech complete किए, और एक ही sentence में we have seen that all parts of speech are covered. Yes, एक सब sentence में आपको सब साथ में नहीं आएगी. ये सिर्फ एक मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है जिसमें सब पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर होती है. यस, बाकी तो आपको सेंटेंस में कभी एडवर्ब आएगा, कभी वर्ब आएगा, कभी प्रपोजिशन कभी आएगा, कभी कंजंक्शन, कभी नाउन, कभी प्रोनाउन. यस, दिस आर जस्ट एग्जांपल्स इन व्हिच ऑल द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर कवर्ड. अंडरस्टूड? नाउ हियर इट बिकम्स end of our chapter parts of speech, and if you are still having any doubt, you can ask and call me, and I will send you the PDFs of this answer, that is exercise given in your